Hi friends, myself Prashant Singh. I have secured AIR 16 in GATE 2020 from Civil Engineering branch. I would like to state that I was part of ICE Master regular classroom program only and did not join any classroom program of any other institute for my GATE 2020 preparation. Further, I relied completely on ICE Master study material and test series. Thank you. Well done, Prashant. What is it like being a GATE 2020 topper? Thank you very much, sir. First of all, I would like to thank my teacher and all the staff faculty of ICE Master for this success, and it feels really great. Prashant, when did you join IES Master? I joined ICE Master in May 2019 after I completed my graduation from IIT BHU. Which batch were you a part of here at IES Master, Prashant? I was a part of Genius batch, which started in May on May 24th, 2019. What gave you the edge over others in GATE 2020? So I think in GATE the only thing that matters is accuracy and your management of time. तो मैं क्या करता था जब भी मैं टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देता था जब भी, तो मेरा एक हमेशा से एक ये मोटिव होता था कि मैं अपने सारे क्वेश्चंस 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लूँ, सो दैट आई कुड टेक अ फुल रिवीजन वंस अगेन इन द लास्ट आवर. तो इससे मेरी एक्यूरेसी भी मेंटेन होती थी, प्लस मेरे सारे क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि मैं दोबारा अटेम्प्ट कर सकता हूँ वो भी मैं कर लेता था. So in that way, I used to attempt about 60 to 62 questions in the test series itself. Prashant, how it all started and what kept you motivated all through this while? Sir, the continuous, the marks in the test series, I had a good performance in the test series. तो एक वो भी एक मोटिवेशन पंच था, प्लस जो टीचर्स एंड स्टाफ जो थे वो भी हमें काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे थ्रू आउट द सेशन कि क्या नहीं करना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स थ्रू आउट द सेशन. तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता था. प्लस कुछ टॉपर स्टॉक हम लोग देखते थे, वो भी हमें मोटिवेशन देता था. Can you quote any topper's talk specifically that inspired you? हाँ सर, प्रखर सिंह मैंने देखा था, एंड सम ESE टॉपर्स जो कि मेरे सीनियर्स थे BHU से, उनकी मैंने वीडियो देखी थी, तो दैट वाज क्वाइट मोटिवेटिंग. Prashant, discipline counts the most. Tell us how you maintained it during your year-long preparation. Sir, actually, our classes ran from 8 a.m. in the morning till 6 p.m. तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द कोचिंग हम लोग को 2 से 3 घंटे का टाइम मिलता था फॉर सेल्फ स्टडी एंड अदर थिंग्स. तो वहाँ पे मैं ये ट्राई करता था कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैं पूरा वो टाइम अपना डिवोट करूँ उन क्वेश्चंस में या जो भी थ्योरी में पढ़ रहा हूँ. एंड फॉर दोज 3 or 4 hours आई वॉज रियली आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड सारा टाइम उसको डिवोट करता था विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. What was your study schedule, Prashant? I used to wake up around 6 a.m. in the morning. Then I prepared for the class. Then after the classes were over, I used to come back to my room. Then take a rest for around 1 hour. Then go for dinner, and then after that, 3 or 4 hours of continuous study without any distraction. Then I used to sleep around 1 a.m. in the morning. Prashant, the day you decided to go for GATE was indeed a call of leadership. Leaders are not born out of age and experience. Rather, it's passion and intensity of action that makes them who they are. How does IES Master faculty takes it to the next level required for excelling in GATE? Sir, I would say IES Master faculty is really awesome, and they helped me throughout the year to make me to make this a good success. स्पेशली कंचन सर, घनश्याम सर, इन्होंने सर काफ़ी हेल्प करी मेरी, क्योंकि मुझे जो वीकनेसेस थी मेरी सर, दे मेड देम माय स्ट्रेंथ. एंड थ्रू आउट द ईयर मेरा जो टेस्ट सीरीज में अगर मेरा कुछ परफॉर्मेंस कभी ख़राब हुआ या फिर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो दे हेल्प मी अ लॉट. तो सर IES मास्टर को अगर मैं पूरी क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने सक्सेस का. Can you quote any specific subject in which you were weak and you overcame it here at IES Master? Yes sir, I would say sir मेरी स्ट्रक्चरल एनालिसिस थोड़ी वीक थी इवन ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम्स. तो क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस कंचन सर लेते हैं, तो एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई कोप अप करने में जो भी क्लास में हुआ करता था. बट देन आई स्ट्रगल वेरी हार्ड,
and then I practiced more and more questions. Then eventually जब ESC और गेट के जो टेस्ट सीरीज देता था उसमें मेरे 100% क्वेश्चंस सही होते थे. तो that was a big punch for me for my success. Prashant, what kind of mind game is involved in GATE? सर आई थिंक एग्जाम गेट के एग्जाम में पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि 2 और 3 क्वेश्चन अगर कंटिन्यूसली नहीं हुए तो उससे लोग पेशेंस लूज कर देते हैं एंड देन दे गो ऑन कमिटिंग मिस्टेक्स थ्रू आउट द एग्जाम. तो वो चीज़ नहीं करना है हमें. जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट गो में उसको अटैम्प्ट करो विद इन 2 hours एंड देन फॉर द लास्ट आवर कीप ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच यू थिंक यू कुड सॉल्व एंड देन मेक वन मोर अटैम्प्ट फॉर देम. आई थिंक अगर ऐसे हम इस एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, टाइम मैनेज अच्छा हो जाता है एंड मिस्टेक्स कम होती हैं. There were batchmates in the IES master classroom who were as good as you in the test series. What, according to you, makes you a winner in the actual exam, Prashant? I think the analysis of test series is more important than actually writing the test series because test series सारे लोग लिखते हैं but the real thing should be आप टेस्ट सीरीज दे के आए देन आपने उसको 2 और 3 hours कंटिन्यूसली एनालाइज किया कि आप कौन से क्वेश्चंस नहीं कर पाए या कौन से क्वेश्चंस जो आपको आते थे बट आप उसको एग्जाम टाइम में नहीं कर पाए. तो दैट थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज होता क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे कंटिन्यूसली देन दैट थिंग इज वीक फॉर यू. तो आपको उसको इम्प्रूव करना है. प्लस होता क्या है सर कि जब हम रैंक कभी कभी क्या होता है सर हम रैंक देख लेते हैं अपनी टेस्ट सीरीज में एंड पीपल गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि ठीक है अब मेरा अच्छा होने लगा है एंड देन द सक्सेसिव टेस्ट दे स्पॉइल इट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. रिदम बना के रखना चाहिए प्लस अपना बेस्ट देना चाहिए और प्लस एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो जो कि हम कभी कभी क्या होता है सर कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं हम लोग को जो क्लास में पढ़ाए गए होते हैं. तो उससे क्या है कि वो बच्चे काउंट कर लेते हैं कि हमने वो क्वेश्चंस भी कर लिए बट वो 2 और 3 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा आपको माइनस करके अपने मार्क्स कैलकुलेट करने चाहिए कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो बिकॉज इन द फाइनल एग्जाम दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग. Better pressure handling, ability to take calculated risks, and picking up the right advices is an art perfected in a learning environment at IES Master. How would you describe it now when you look back at the days when you started your classes here at IES Master? एक्चुअली सर जैसा कि मैंने बताया कि हाँ जैसे मैं मॉक टेस्ट सीरीज देता था इस मास्टर की दैट वाइज क्वाइट ऑन द टफर साइड एज कम्पेयर टू द रियल गेट एग्जाम. तो उससे क्या होता था कि वहाँ से मेरा टाइम मैनेजमेंट बेटर हुआ प्लस मेरी कभी कभी वहाँ पे क्वेश्चन मेरे ज़्यादा गलत होते थे कभी कभी स्टार्टिंग में. बट देन आई रियलाइज कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ. मैं गलती ये करता था कि आई अटेम्प्टेड ओनली वंस एंड देन आई यूज्ड टू सबमिट इट. वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करता था. तो उसको मैंने फिर इम्प्रूव किया प्लस क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे होते थे इस मास्टर में तो उसी लिमिटेड टाइम में 3 hours में आपको अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एंड 65 इन नंबर. तो आई थिंक उसने मेरी स्पीड को भी इम्प्रूव किया. तो आई थिंक स्पीड एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट आई थिंक दीज आर द ओनली एसेट्स यू मस्ट कैरी व्हेन यू राइट द गेट एग्जाम. Prashant, how did IES Master Classroom program benefit you? Sir, I owe my success to IES Master Classroom program because I think classroom में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो चीज़ें बहुत सी बुक्स में भी नहीं होती एंड इन द लिमिटेड टाइम ऑफ 6 to 8 months आपको सारी चीज़ें बुक से नहीं पढ़ सकते. सो इन दैट मैनर IES Master helped me a lot, especially in structural analysis and steel structures because that was my weak part. So I focused more upon that and so classroom में एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट भी होता है जो कि क्योंकि सारे बच्चे इक्वली प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक कंपटीशन एनवायरनमेंट रहता है जो कि काफ़ी हेल्दी होता है फॉर द रियल कंपटीशन. Prashant, take us through the classroom environment where there are many quality students, especially from IITs, NITs and other good private engineering colleges. How do you felt when a numerical problem was given for solving and later on when it was discussed? So actually when teacher gave us the question to solve, actually वो हमसे ही बोलते थे कि सब ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर वंस. आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो एंड टाइम देते थे एज पर द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन. देन जब सबका हो जाता था जब 1-2 लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे देन दे यूज्ड टू सॉल्व इट ऑन द बोर्ड.
तो उससे जिसका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है वो ये चेक कर सकता है कि वो सही है या नहीं, एंड जो नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन वो ये देख सकता है कि उसने गलती कहाँ करी है, एंड देन ही कैन इम्प्रूव अपॉन दैट। What was the target in your mind while attempting GATE 2020 paper? यस सर, टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो मेरे माइंड में ये था कि मैं अंडर 10 स्कोर कर सकता हूँ if I could maintain my patience and calm and composure during the exam, and that happened, and I'm really grateful for that. Prashant, was there a wow moment when the GATE 2020 paper flashed on your computer screen? Yes, sir. Actually, I used to start my questions from the technical section first. So the first question was really very easy, and then I went on attempting the questions. The 1 marks questions were really very easy, so that boosted up my confidence. And जब 2 marks वाले questions आए तो वो भी सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, एंड सारे मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर रखे हुए थे, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ क्वेश्चंस थे जो नॉन कन्वेंशनल टाइप के थे, तो उनमें मैंने थोड़ा थॉट दिया अपना, एंड आई गॉट देम करेक्ट। सो आई थिंक एग्ज़ाम मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ था। How did you keep yourself grounded while avoiding silly mistakes? सर एज आई टोल्ड यू सर, मैं 2 आवर्स के अंदर अपना पहला अटेम्प्ट कंप्लीट कर लेता था, तो प्लस उसमें ये था कि सर मैं स्क्रिबल पैड में एज पर द क्वेश्चन वाइज हमेशा सॉल्व किया करता था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन सॉल्यूशन, एंड मैं उसके आंसर को एक ब्लॉक में वो किया करता था, मार्क किया करता था। तो उससे क्या होता था, जब मैं रिवाइज कर रहा होता था क्वेश्चंस, तो उसमें मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके अपनी वैल्यूज डायरेक्ट आंसर चेक कर ले करता था। इससे मेरा टाइम सेव होता था, प्लस मेरा रिवीजन हो जाता था सारे क्वेश्चंस का, एंड और जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे फर्स्ट टाइम में, उसमें मैं ज़्यादा टाइम दे पाया। Prashant, how was this year's GATE paper? So this year GATE paper was relatively easy as compared to GATE 2019, जो कि मैंने न्यूज़ में देखा है या यूट्यूब वीडियोस पे देखा है, एंड द क्वेश्चंस आस्क्ड वर ऑफ स्टैंडर्ड टाइप, not very tricky. There were some questions which were non-conventional, especially in transport and traffic engineering. Rest were the same, and in the aptitude part was really easy. Was there any difficult moment while writing GATE 2020? Yeah, so in the actual exam, there were some questions, as I told you, in transportation engineering. Those were non-conventional. I mean, वो questions कभी previous year में नहीं पूछे गए, तो उस question में थोड़ी difficulty हुई थी, क्योंकि वो क्वेश्चन वो चीज़ हमने कॉलेज में भी जनरली नहीं पढ़ते, और यहाँ पे भी वो बुक्स में भी नहीं होता, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी। बट द थिंग इज़ यू मस्ट स्टिक ऑन द बेसिक्स, ऑन द क्वेश्चंस दैट यू नो। आई मीन इफ अराउंड 90 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से कर लो, इवन देन यू कैन स्कोर 80+ रादर देन अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स एंड गेटिंग 70 मार्क्स इन द एंड। Prashant, did you leave any questions? Yes, sir. I left 3 questions. 2 questions of 2 marks and 1 questions of 1 mark. That was English. Prashant, how was IES Master Study Material helpful in your preparation? So it helped me a lot during the GATE preparation. I solved all the questions from the booklet, theory booklet that were given to us. उससे जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे सारे टॉपिक्स के, उसको मैंने सॉल्व किया टाइम लेके, एंड using the gate calculator, because using the gate calculator is also an art that you must master. तो ये चीज़ें मैंने अराउंड 20 डेज लगे मुझे ये सब पूरा करने में, पूरे क्वेश्चंस आइस मास्टर के बुकलेट से। एंड सर आइस मास्टर की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छी थी गेट की, बिकॉज द क्वेश्चंस वर रियली क्वाइट ऑन द टफर साइड एज कम्पेयर टू द रियल गेट एग्जाम। तो वहाँ से अब टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी वहाँ पे आप अपनी चेक कर सकते हो, तो काफ़ी हेल्प किया आइस मास्टर ने। When did you start preparing using GATE calculator, Prashant? So I started practicing the GATE calculator right after my ESE prelims. After writing my ISRO exam on 12th January, I started preparing for GATE, and then I started using the GATE calculator in my mobile first, and then after 3 or 4 days, I downloaded it on my laptop, and then when I used to solve any question, then I used the GATE calculator. Did you prepare short notes? सर जनरली आई डिड नॉट प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। मैं हमेशा ये सोचता था सर कि जब भी मैं रिवीजन करूँ, मैं एक बार फुल क्लास नोट्स की जो फुल रिवीजन करूँ, तो मैं अराउंड एक दिन लगता था मुझे सर पूरी कॉपी रिवाइज करने में। तो इन दैट मैनर ये होता था कि मेरी कोई चीज़ छूट नहीं रही है, मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता था। तो सर ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज उसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते थे,
तो जो इम्पोर्टेंट थी वो उनके मैंने शॉर्ट नोट्स से बनाए थे, बट नॉट द एंटायर सिलेबस. Tell us about your family, Prashant. Sir, my father is in government service, my mother is a housemaker, and my sister is currently pursuing MBBS from Bangalore. Take us through your growing years. Yes, sir. I completed my class 10th from St. Dominic Xavier College, that is in Lalitpur, Uttar Pradesh, and then for 11th and 12th I moved on to Jhansi, and where I completed my intermediate from Mahatma Hansraj Modern School, and then I started along with 11th 12th, and I started preparing for JEE. Then I did my BTech from IIT BHU Varanasi. Prashant, how is the campus life at IIT BHU Varanasi? So actually college life is really great. I really miss those days because वहाँ पे पढ़ना ज़्यादा नहीं होता था, but actually basically college is for grooming of the student. तो actually मुझे लगा कि शायद ग्रूमिंग मेरी अच्छी से हुई थी कॉलेज में, प्लस आपको वहाँ एनवायरनमेंट ऐसे मिलता है कि आप जो आपको करियर परस्यू करना चाहते हो यू कैन डू दैट, एंड स्पेशली इन स्टडीज़ ऑल्सो. वहाँ पे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता है, आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो या फिर आप रूम पे ही पढ़ सकते हो जैसा आपको सही लगे. तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट बूस्ट टू ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ द फ्रेंड्स जिन्होंने आइसमा से ज्वाइन किया है. What other activities were you involved in at IIT BHU apart from academics? Okay, sir. During my first year, I was involved in cricket and aero modeling club. I was an active member of aero modeling club till my third year, when I started my preparation for ESE, self study. उसके अलावा सर हम लोग के में एक टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट होता है, एक टेक्निक्स, उसमें मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, और all of them through the aero modeling club. एंड सर कुछ बेसिक इवेंट्स होते थे, जैसे फर्स्ट ईयर में सर हम लोगों ने काफ़ी इवेंट्स में पार्ट लिया था. एंड ऑल्सो फ्रॉम द कॉलेज साइड वी अटेंडेड IIT खड़गपुर फेस्ट, IIT कानपुर इंटर IIT, एंड IIT बॉम्बे टेक फेस्ट. Prashant, what would be your message to the future aspirants from IIT BHU? सर फ्यूचर एस्पिरेंट्स बस ये बोलना चाहता हूँ मैं कि कभी भी अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना है. सर ऑलवेज ट्राई टू मेक योर वीकनेसेस योर स्ट्रेंथ, बिकॉज इफ़ यू कैन डू दैट देन आई थिंक हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन. और प्लस कभी भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को. जो भी चीज़ आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है ट्राई टू इम्प्रूव दैट and focus more on the things those you are weak on. and just ये भी है कि आप अपने फुल टाइम डिवोट करो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. जितना टाइम आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से करो और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. बस यही है. Prashant, what are your short, medium, and long term goals from here on? Sir, my current goal is securing a good rank in ESE and joining a good department. Then for the long term goals, I would say I would be looking forward to civil services exam, because that is my ultimate goal to achieve. Prashant, may you go on to achieve every single dream and make your parents proud for the time to come. IES Master wishes you the very best for all your future endeavors. Thank you very much, sir.